सदियों से एक महान स्मारक रहस्य में डूबा हुआ है। इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी जो समय की रेत पर सवाल उठाती है। ये प्रेम का प्रतीक ताजमहल क्या वास्तव में कुछ और था? आगरा की यमुना नदी के तट पर खड़ा ये श्वेत संगमरमर का चमत्कार सदियों से दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। मुगल वास्तुकला की पराकाष्ठा जिसे शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। प्रत्येक मेहराब, प्रत्येक नक्काशी मुगल काल की कला और शिल्प कौशल की कहानी कहती है। लेकिन क्या इस भव्यता की जड़ें मुगल साम्राज्य से भी पुरानी है? एक ऐसा दावा जो इतिहास को चुनौती देता है। खुली आंखों से परे कुछ गलियारे हैं जो अनसुलझे रहस्य छिपाए हुए हैं। बंद कमरे, छिपे हुए तहखाने और स्तंभ जो एक पुरानी पहचान की ओर इशारा करते हैं। इमारत के भीतर की वास्तुकला जिसे कुछ लोग मुगल शैली से अलग मानते हैं, क्या ये हमें एक अलग अतीत की ओर ले जाती है? ये है तेजो महालय का सिद्धांत जो दावा करता है कि ताजमहल वास्तव में एक शिव मंदिर था। दावेदारों के अनुसार मुगलों ने इस प्राचीन हिंदू मंदिर को एक मकबरे में बदल दिया था। इस सिद्धांत के समर्थन में कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे कि मंदिर के समान वास्तुशिल्प विशेषताएं और परिसर में पाए गए कुछ प्रतीक। परंतु ये सिद्धांत ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाणों की कसौटी पर कहां तक खरा उतरता है? शोधकर्ता सदियों पुराने दस्तावेजों और पांडुलिपियों की गहराई में उतरते हैं, सच्चाई की तलाश में। पुरातात्विक खुदाई और साक्ष्य इस महान इमारत की नींव और इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। मुख्य धारा के इतिहासकार और पुरातात्विक सर्वेक्षण इस दावे का समर्थन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि उपलब्ध साक्ष्य स्पष्ट रूप से ताजमहल को मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण सिद्ध करते हैं। संरचना का लेआउट, अनुपात और इस्लामी शिलालेख इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये एक मकबरा ही था। समय बीतता गया है, लेकिन ताजमहल का रहस्य और उसकी भव्यता कायम है। चाहे वो प्रेम का स्मारक हो या कोई प्राचीन मंदिर, इसकी कहानी सदियों तक गूंजती रहेगी। ये इमारत भारत के जटिल और बहुआयामी इतिहास का एक कालातीत प्रमाण है। Soft cinematic orchestral documentary music begins, emotional and royalty-free. Visual focus on the dramatic sunrise and the historical setting of 17th century Agra, setting an immersive atmosphere. The camera moves slowly, revealing the vastness of the area where construction is about to begin, emphasizing the quiet before the storm of activity. कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में लगभग 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने वर्षों तक काम किया था। Transitioning from the finished work to the beginning of the effort, showing the preparation and the gathering of the vast workforce. Thousands of hands, driven by a singular vision, gather at the site where history is being etched in marble. The camera pulls back to showcase the epic scale of the construction, a testament to coordinated human effort, highlighting the incredible craftsmanship brought to the project, focusing on the artistry of the marble carvers. The meticulous process of carving begins, where rough marble is transformed into delicate, timeless poetry. Every strike of the chisel is deliberate, shaping the stone not just with force, but with generations of skill. Shifting focus to the logistics and engineering challenge of moving colossal materials. The monumental blocks of marble are hauled by powerful animals and determined men, moving mountains to realize the emperor's dream. Engineers and architects meticulously measure and calculate, ensuring every structure adheres to perfect symmetry and stability. The atmosphere of the site is charged with intense human effort, where sweat and dust mingle in the air. Every muscle strains under the weight of creation, a testament to determination and resilience. Sparks fly, symbols of the relentless work ethic and the collaborative spirit of the builders. With every day, the vision takes shape, the majestic structure slowly climbing towards the heavens. The monument begins to assert its dominance on the landscape, a rising wonder forged by human will. The intricate details of the marble and the perfect lines now stand in quiet anticipation of completion, the culmination of decades of toil, skill, and devotion. इनमें पत्थर तराशने वाले कलाकार, इंजीनियर, वास्तुकार और अनेक कुशल कारीगर शामिल थे। उनके हाथों की मेहनत ने दुनिया की सबसे अद्भुत इमारतों में से एक को जन्म दिया। The soft cinematic orchestral music swells and fades out, leaving a lasting impression of the monument and its makers. सदियों से एक प्रेम कहानी की गवाही दे रहा ये संगमरमर का अजूबा अपने भीतर एक गहरा राज छिपाए हुए है। ताजमहल, जहां वास्तुकला की भव्यता समय के साथ ठहर गई है। हर पर्यटक इसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होता है। पर क्या हम इस इमारत के हर पहलू को जानते हैं? आगरा की यमुना नदी के किनारे खड़ा ये मकबरा मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल की अमर निशानी है। इसकी नक्काशी, इसकी समरूपता दुनिया के लिए एक खुली किताब है। हर कारीगरी एक कहानी बयान करती है।
लेकिन इस भव्यता के नीचे इस इमारत के कुछ हिस्से आज भी आम दुनिया की नजरों से दूर, बंद और सील हैं। यहीं से शुरू होता है एक अनसुलझा रहस्य। ताजमहल के भीतर जमीन के नीचे कई गलियारे और तहखाने हैं, जिन्हें कभी जनता के लिए नहीं खोला गया। अंधेरे और सन्नाटे से भरे ये रास्ते कहाँ तक जाते हैं, ये तहखाने क्या छिपाए हुए हैं, इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बंद दरवाजों पर लगी सीलें और संगमरमर की जटिल नक्काशी हर कोने में एक सवाल छोड़ जाती है। इतिहास कहता है कि ये इमारत प्यार की निशानी है, पर इसके गहरे राज इसकी दृश्य सुंदरता से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। ये बंद कमरे लोगों की कल्पनाओं को हवा देते हैं। इन अज्ञात हिस्सों के बारे में जानने की उत्सुकता लाखों लोगों में है। ये खाली शांत कमरे क्या देखते हैं? इनकी दीवारों ने कौन सी सदियों पुरानी खामोशी को अपने भीतर समेट रखा है? आखिर क्यों इस विश्व धरोहर के कुछ कक्ष आज भी जनता के लिए अगम्य बने हुए हैं? इन्हीं बंद दरवाजों के कारण कई रहस्यमय कहानियां और षड्यंत्र सिद्धांत लोगों के बीच घूमते रहते हैं। लोग अटकलें लगाते हैं कि इनके भीतर क्या हो सकता है। हालांकि इन अटकलों के बीच आधिकारिक पक्ष हमेशा सुरक्षा और संरक्षण का हवाला देता रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का कहना है कि इन कमरों को इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा और कलाकृतियों के संरक्षण के लिए बंद रखा गया है। आर्द्रता और तापमान में बदलाव से संगमरमर और अंदर रखे सामान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए इनकी निगरानी आवश्यक है। संरक्षण का काम एक निरंतर प्रक्रिया है। इन ऐतिहासिक चमत्कारों की रक्षा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। पर चाहे जो भी कारण हो, ताजमहल के बंद कमरे हमेशा इतिहास प्रेमियों और रहस्य में रुचि रखने वालों के लिए एक अंतहीन जिज्ञासा बने रहेंगे। ये शानदार इमारत इतिहास, संरक्षण और सार्वजनिक जिज्ञासा के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए हुए है। हम जानते हैं कि कुछ राज हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे ही रहने चाहिए, ताकि समय के साथ उनकी भव्यता बनी रहे। और इस तरह प्रेम की ये गाथा अपने अनसुलझे रहस्यों के साथ सदियों तक दुनिया को अपनी ओर खींचती रहेगी। भारत की शान, मोहब्बत की निशानी ताजमहल, इसकी भव्यता और वास्तुकला आज भी दुनिया को अचंभित करती है। आगरा में यमुना नदी के तट पर खड़ा ये संगमरमर का चमत्कार एक ऐसा रहस्य भी समेटे हुए है जो सदियों से कहानियों में जीवित है। मुमताज महल की याद में बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया ये स्मारक अपने आप में एक संपूर्ण कहानी है, जिसमें प्यार और बलिदान की गहराई है। लेकिन क्या इस अद्भुत निर्माण के पीछे एक काला सच छिपा है? एक ऐसी कहानी जो कारीगरों के दर्द से जुड़ी है। इन दीवारों पर जो नक्काशी दिखती है वो साधारण नहीं। ये कुशल कारीगरों के अथक परिश्रम का परिणाम है, जिन्होंने अपनी कला से पत्थर में जान डाल दी। उनकी उंगलियों की हर हरकत में महारत थी, जिसने संगमरमर को अद्वितीय सुंदरता प्रदान की। हर फूल, हर डिजाइन उनकी मेहनत का कमाल है। दिन रात पीढ़ियों ने मिलकर इस भव्य सपने को साकार किया, पसीना बहाया और अपने खून पसीने से इस इमारत को चमक दिया। मगर जैसे जैसे निर्माण पूरा हुआ, एक कहानी हवा में फैलने लगी, जिसने इस प्रेम कहानी में एक भयावह मोड़ डाला। एक प्रसिद्ध कहानी दावा करती है कि ताजमहल के निर्माण के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे, ताकि वे कभी भी ऐसी दूसरी इमारत न बना सकें। ये विचार मात्र ही मन को बेचैन कर देता है। क्या प्रेम का इतना बड़ा प्रतीक इतने बड़े अत्याचार पर खड़ा है? कटे हाथों की ये अफवाह मुगल युग की गलियों और बाजारों में आग की तरह फैल गई। लोग चिंतित थे, फुसफुसाहटें थीं और कारीगरों के भविष्य को लेकर डर का माहौल था। हर परछाई में एक अनकहा भय छिपा था। ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये उस दौर की कला और कलाकार के प्रति शासकों की क्रूरता का डर था। लेकिन इतिहास की गहराई में उतरने पर क्या ये कहानी सच साबित होती है या ये सिर्फ एक मिथक है? इतिहासकार और शोधकर्ता दशकों से मुगल अभिलेखागार, पुराने दस्तावेजों और प्राचीन अभिलेखों को खंगाल रहे हैं। वे उस समय के विस्तृत रोजनामचा, दैनिक रिकॉर्ड और निर्माण से जुड़े भुगतान रजिस्टरों की जांच करते हैं, ताकि सत्य को उजागर किया जा सके। जांच के नतीजे क्या बताते हैं? क्या हमें इस भयानक कहानी को इतिहास का हिस्सा मानना चाहिए? अधिकांश इतिहासकार इस दावे के समर्थन में कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं पाते हैं। ये कहानी एक लोकप्रिय किंवदंती बनकर रह गई, न कि एक पुष्ट ऐतिहासिक तथ्य। आज ताजमहल प्रेम और अद्वितीय वास्तुकला का प्रतीक बनकर खड़ा है, एक ऐसी कृति जो अपनी सुंदरता से हर सवाल को चुप करा देती है। ये मिथक चाहे सच हो या न हो, ताजमहल हमेशा दुनिया को आकर्षित करता रहेगा और इसकी भव्यता कारीगरों की अमर विरासत को दर्शाती रहेगी। ताजमहल केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि रोशनी और समय के साथ बदलती हुई एक जीवित कला है।
सुबह की पहली किरणों में ये हल्के गुलाबी रंग का आभास देता है। दोपहर की चमक में इसका सफेद संगमरमर अपनी शुद्ध सुंदरता दिखाता है। और चांदनी रात में इसकी सतह पर एक सुनहरी सी आभा रहस्यमयी आकर्षण पैदा करती है। ये स्थापत्य कला का एक कालातीत उदाहरण है जो हर पल हर रोशनी में अपनी कहानी कहता है। ताजमहल केवल संगमरमर से नहीं बना था। इसकी खूबसूरती दुनिया के अलग अलग कोनों से लाई गई दुर्लभ धरोहरों से सजाई गई थी। तिब्बत से फिरोजा। अफगानिस्तान से लाजवर्द, श्रीलंका से नीलम और चीन से जेड, मानो पूरी दुनिया ने मिलकर एक अमर कृति को जन्म दिया। ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं? मुगल काल के कई रिकॉर्ड, दरबारी दस्तावेज और शिलालेख ताजमहल को एक मकबरे के रूप में वर्णित करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन अभिलेखों में शाहजहां द्वारा निर्मित इस स्मारक का उल्लेख मिलता है। समय के साथ ताजमहल केवल एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास, कला और विरासत का प्रतीक बन गया। ताजमहल का निर्माण वर्ष 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में पूरा हुआ। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया।
हजारों कारीगरों और मजदूरों की मेहनत से बना ये स्मारक आज भी प्रेम और वास्तुकला की अद्भुत पहचान माना जाता है।